Hello students, so in the last videos we have covered a major portion of the second chapter, that is matter around is pure. In this video we are going to discuss about some of the techniques of separation of components of a mixture. This is very important topic of this chapter जिसका थोड़ा portion थोड़ा लंबा भी है. We are going to discuss many separation techniques. Okay, तो अभी हम लोगों ने already homogeneous mixture क्या होता है, heterogeneous mixture क्या होता है, सब पढ़ लिया. हम लोगों ने इवन पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया. तो कभी कभी हम लोगों ने, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था, जितने भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो यूजुअली क्या है, मिक्सचर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी यूज आर नॉट इन द प्योर फॉर्म. तो जो सेपरेशन टेक्निक्स होते हैं उससे क्या होता है, हम लोगों को हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो होती है उसको सेपरेट करने में आसानी होती है. So by the separation techniques you can find out the individual components of a mixture and you can study them. अब जैसे जैसे अगर हम बात करें कुछ फिजिकल मेथड्स से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं. जैसे अगर मैं फिजिकल मेथड्स की बात करूं, जैसे सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सेविंग, ये सब में क्या होता है कि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास राइस है, उसके ऊपर स्टोन्स हैं, तो स्टोन्स और राइस का मिक्सचर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्टोन्स को हैंड पिकिंग से रिमूव कर सकती हूँ. तो फिजिकल मेथड्स जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, सेविंग हो गए, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल मेथड्स है. Okay, so this is the easiest methods by which you can separate the components by easily. ठीक है, but there are some techniques जो थोड़ा complex होते हैं, जो कि special techniques होते हैं जिसको हम लोग को use करना पड़ता है separation के लिए. So in this chapter we are going to discuss these important techniques. First one, we will be discussing the separation by the process of evaporation. Second, we will be discussing about centrifugation. Third one, we will be discussing about on the basis of डेंसिटी के डिफरेंस के हिसाब से by using a separating funnel. Fourth, we will be using by the process of sublimation. Fifth, by using chromatography. Sixth, by using distillation. Distillation के अंदर भी हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, that is one is simple distillation and then the one is fractional distillation. Okay, so we will be making different videos for each and every technique of separation so that it can be useful for you to understand the concepts more easily. Okay, so now we are going to discuss the first technique of separation, and that is by the process of evaporation. You all know that what is evaporation. What is evaporation? That is conversion of liquid into gas. तो evaporation technique जो है हम लोग use कर सकते हैं for the separation. क्यों, क्या होता है evaporation, किसके लिए use कर सकते हैं, जैसे कोई solid substance है, solid substance dissolved in liquid. ओके, सो इवापोरेशन टेक्निक से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय इवापोरेशन. जैसे कि अगर हमें बोल रहे हैं कि सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व वाला एक मिक्सचर है हमारे पास, तो क्या होगा, आपका जो लिक्विड होगा उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और आपका सॉलिड एसिडस रहेगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इवापोरेशन जो टेक्निक है, हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि इट इज बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोग को पता है जो लिक्विड्स होते हैं can be vaporized, they can be what, vaporized, but आपकी जो solids होती है, but solids cannot be vaporized. So that is the point, क्योंकि क्या है, आपके जो solid substances है वो vapor में convert नहीं होते, और जो आपकी liquid substances है वो किस पे convert हो जाते हैं, vapor में convert हो जाते हैं. So that is why this particular method, that is why evaporation can, that is why the separation technique of evaporation can be used. ओके, सो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इवापोरेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सॉलिड जिसको आपको सेपरेट करना है वो आपको एसिडस मिलता है. अब इसमें एक ड्रॉबैक ये है, जैसे कि हम लोगों ने कहा लिक्विड जो है वो इवापोरेट हो जाता है और जो आपका सॉलिड है वो एसिडस रह जाता है. तो मतलब लिक्विड जो है, लिक्विड क्या हो रहा है, दैट इज गेटिंग इनटू वेपर, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड इट इज लॉस्ट इनटू into the
एटमॉस्फेयर। सो योर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोटबुक में मेंशन करना है, जब आपके नोट्स मैं चेक करूंगी तो ये पॉइंट बाय पॉइंट होना चाहिए। आपको आदत अभी तक तो आ ही जाना चाहिए कि जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपके नोट्स में बनाते जाना। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं उस मिक्सचर को हम लोग इवापोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं वो वेपराइज होते हैं, सॉलिड्स नहीं वेपराइज होते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इवापोरेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज क्या है, एंड as the liquids is converted into vapors and it gets lost to the atmosphere, so यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाता है, therefore वाटर और द लिक्विड, और कोई भी जो लिक्विड या फिर आप कह सकते हैं कोई भी सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय दिस टेक्निक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इवापोरेशन टेक्निक में आप सॉल्वेंट को रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इवापोरेशन में क्या आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो रहा है, तो आप सिर्फ किसको इस पे रिकवर कर पा रहे हो, किसको आप सेपरेट कर पा रहे हो, उस पे जो सॉलिड डिसॉल्व है सिर्फ उसको ही क्या कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे। अब इवापोरेशन प्रोसेस, जैसे आपको सबसे इजीएस्ट अगर एग्जांपल ले, दैट इज द शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। और आपको पता है कि जो सी वाटर में से क्या करते हैं, इवापोरेशन टेक्निक से ही क्या डिस्कवर करते हैं, सॉल्ट, दैट इज ऑन द लार्ज स्केल। वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपका जो सी वाटर होता है उसको हम लोग शैलो लेक्स, मतलब उसको स्टैंड करवाते हैं, एक स्टैंडिंग एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करते हैं, इकट्ठा करवाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा ये। और वहाँ पे क्या होता है, फिर धीरे धीरे इवापोरेशन टेक्निक होता है और इवापोरेशन से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे वाटर इवापोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट बचा होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम लोगों को लेबोरेटरी स्केल में करना है, सपोज आई एम टेकिंग अ बीकर ऑफ वाटर एंड व्हाट आई एम डिसॉल्विंग सॉल्ट इन इट, सो ऑब्वियस बात है जब मैं उसको एज इट इज रूम टेम्परेचर पे रखूंगी तो भी वाटर तो इवापोरेट होगा, बट बहुत स्लो प्रोसेस होगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग अ बीकर ऑफ वाटर एंड देन आई एम एडिंग NaCl टू इट एंड आई एम डिसॉल्विंग इट। तो सिंपल सी चीज़ है कि NaCl को जो आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेथड से तो आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके जो सॉल्ट होती है वो कंप्लीटली आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल दैट इज सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, जब आप बात करते हो सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इस केस में याद रखना कि क्या है, सॉल्ट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, इसीलिए आपका वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट क्या होता है, एज इट इज रह जाता है। सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल है दैट इज सल्फर जो है, अगर जो सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइसल्फाइड हो जाता, जो सल्फाइड है वो क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है। ये जो चीज़ होती है ये क्या हो जाता है, पेपर में कन्वर्ट हो जाता है और आपको क्या मिलता है, सिर्फ सल्फर मिलता है। तो एक जो डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, आप जो आपके जो दो कंपोनेंट्स में से सिर्फ आपको एक ही कंपोनेंट मिलता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। नाउ these are some examples which can be used, जैसे कि मैंने salt dissolved in water बोला, दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो sugar dissolved in water, ठीक है, और dissolved in water, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, वाटर इवापोरेट हो जाता है और शुगर हमको मिल जाता है। और दूसरा आप जो एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इज ऑन लार्ज स्केल, क्या होता है, ऑन लार्ज स्केल अगर हम बात करें तो क्या है, सी वाटर में से क्या हो जाता है, सॉल्ट को सेपरेट करते हैं, सॉल्ट separated from sea water by the process of evaporation. Okay, now let's move to the activity that has been given in your NCERT book, जो कि as it is आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मतलब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। Let's move to that question. So we need to remember two important terms, that is regarding volatile substances and non-volatile substances, ठीक है। तो ये volatile substances और non-volatile substances क्या होता है, volatile मतलब क्या होता है, जो easily evaporate होता है। तो volatile means what, the one which can easily
be evaporated, or you can say that which can be easily converted into vapors. और non-volatile मतलब क्या होता है, जो easily, the one which cannot be converted into vapors. जैसे non-volatile same, the one which cannot be converted into वेपर्स. तो यूजुअली आप ये याद रखो, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, यूजुअली जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जो यूजुअली सॉलिड्स, जैसे कि हमने अभी हम इवोपरेशन पढ़ रहे हैं, जैसे हम इवोपरेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस कभी भी क्या नहीं होते, इवोपरेट नहीं होते. तो आपका नॉन वोलेटाइल क्या होगा, द सॉलिड विच इज डिसॉल्व, और वोलेटाइल क्या होगा, जो लिक्विड. वोलेटाइल आप कह सकते हैं आपका सॉल्वेंट होगा. तो वोलेटाइल मीन्स द सॉल्वेंट, एंड नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हुआ आपका solute, solid solute. Okay, so these two terms is very important. What are volatile substances and what are non-volatile substances? ये आपको पता होना चाहिए, हायर क्लासेस में भी काम आएगा. What are volatile? The one which can be easily converted into vapors, and non-volatile means the one which cannot be converted into easily into vapors. तो usually जो solid substances होते हैं वो non-volatile होते हैं, और volatile वो होते हैं जो easily evaporate कर सकते हैं. जैसे हम लोग एसीटोन को हमारे नेल पे डालते तो क्या होता है, वो एसीटोन आप जैसे ही डालते तो क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, राइट. सो यू कैन सी दैट एसीटोन इज अ गुड वोलेटाइल लिक्विड. ओके, जैसे हम लोग शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर इवोपरेट होता है, पर शुगर जो है एसिड हमको मिलता है. सो शुगर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. क्लियर? Okay, so the important one regarding the technique of evaporation is that how can we separate the colored component of ink? Colored component ink के अंदर क्या होता है, that is dye. Okay, जितने भी आप फाउंटेन पेन्स और जो भी पेन्स यूज करते हैं, it is made up of two components. क्या होता है, जो डाई होता है, जो जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी फाउंटेन पेन के अंदर जो इंक होती है, ठीक है. सो इंक जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. दैट इज वन, दैट इज डाई विच इज डिसॉल्व्ड इन, डाई इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. अब व्हाट इज दिस डाई मैम? डाई क्या होता है, इट इज अ कलर्ड कंपोनेंट. डाई क्या होता है, इट इज अ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द, इट इज द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक. ओके, अब हमें पता है कि जो डाई है उसको क्या किया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है. तो ऑब्वियस बात है कि वो क्या है, डाई जो होते हैं वो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं. तो डाई को क्या कर सकते हैं आप, वाटर से सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. अब जैसे हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड इन डिसॉल्व्ड इन वाटर एक बीकर में लिया और उसको डायरेक्टली हीट किया, बट इस केस में क्या नहीं होता है, वी विल नॉट डायरेक्टली हीट द इंक. जो इंक हम लोग को जिसपे से आपको डाई कंपोनेंट को सेपरेट करना है, क्योंकि हमें पता है इंक के अंदर दो चीजें, एक डाई और वाटर. तो आपको क्या करना है, डाई जो कलर्ड कंपोनेंट है, डाई क्या है, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द इंक, इसको हमें सेपरेट करना है. तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाएगा और डाई जो है एज ए सॉलिड रेसिड्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. अब चीज क्या है कि आप डाई को कभी भी, द इंक विल नॉट बी हीटेड डायरेक्टली, इट विल नॉट बी हीटेड डायरेक्टली in the supply of flame, or you can say from the burner. ठीक है, फ्लेम में डायरेक्टली आप क्या नहीं करते हैं, बर्न नहीं करते हैं. सो व्हाई वी आर नॉट हीटिंग द इंक इन द डायरेक्ट सप्लाई ऑफ द फ्लेम, इट इज बिकॉज जो आपके डाई कंपोनेंट है, ये जो डाई कंपोनेंट है, जो भी डाई कंपोनेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस. तो ये जो डाई कंपोनेंट होता है, बिकॉज आपका स्पेलिंग बिकॉज का पूरा लिखना है, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको फुल लिखना है, ठीक है. बिकॉज डाई कंपोनेंट डिकम्पोजेस, क्या हो जाता है, जो डाई कंपोनेंट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिकम्पोज हो जाता है. पर हमको तो क्या करना है, डाई को एसिड से सेपरेट करना है. तो अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो डाई का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. डिकम्पोज होना मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो एज डाई कंपोनेंट ब्रेक्स, डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर.
तो हम लोग कैसे इसको सेपरेट करेंगे, हम लोग को इवापोरेशन टेक्निक से डाई कंपोनेंट को क्या करना है, वाटर से सेपरेट करना है. सो हाउ विल वी डू दिस, वी विल टेक जो डाई होता है, वी विल टेक डाई इन अ चाइना डिश एंड सो, ठीक है, सो वी विल टेक यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क करके लिखा है. सो वी विल टेक द डाई इन अ चाइना डिश एंड विल प्लेस इन द माउथ ऑफ अ वाटर बाथ. ओके, अब ये हो गया हमारा सेटअप, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, डायरेक्टली आप हीट नहीं कर सकते डाई को, क्योंकि रीजन क्या है, डाई कंपोनेंट डिकम्पोजेस हो जाता है हाई टेम्परेचर पे. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इंक की बात करें, ये ब्लू इंक हो, ब्लैक इंक हो, कोई भी इंक हो, इसके लिए जितने भी इंक होते हैं उसमें डाई वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, ये याद रखना. कोई भी पर्टिकुलर कलर के लिए नहीं, कोई भी तरह का इंक हो. ओके, अब ये वाटर बाथ क्या होता है मैम, व्हाट इज वाटर बाथ. वाटर बाथ कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने एक बीकर में वाटर लिया, ठीक है, और कोई भी बीकर में आप वाटर ले लो और उसको क्या करो, एज अ मीडियम टू सप्लाई द हीट. अब ये कैसे वाटर बाथ, मतलब कोई भी बीकर के अंदर आपने वाटर लिया है, पर आप उसके ऊपर कोई चीज़ को रख के क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो. मीन्स आप डायरेक्टली उस चीज़ को हीट नहीं कर रहे हो, उसको पानी के अंदर, जो आपने बीकर के अंदर पानी लिया. व्हाट इज वाटर बाथ, यू कैन प्रिपेयर अ वाटर बाथ बाय सिंपली टेकिंग अ बीकर विच इज फिल्ड विद वाटर. नाउ दिस इज अ सेटअप for what, for the separation of dye from water. ओके, सो क्या करते हैं हम लोगों ने, जैसे कहा चाइना डिश के ऊपर आपने क्या किया, वाटर बाथ के ऊपर चाइना डिश रख दिया. सो इट इज प्लेस्ड ऑन द माउथ ऑफ द द वाटर बाथ. ठीक है, वाटर बाथ आप जैसे देख सकते हैं, बीकर के अंदर मैंने पानी लिया, उसके ऊपर चाइना डिश रखा है. अब क्या करो, यू आर कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग हीट. ओके, यू आर कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम द बर्नर. सो जब आप हीट बर्नर को दे रहे हो तो जितने भी वाटर जो प्रेजेंट होते हैं दैट गेट्स इवापोरेटेड. बट वाटर जो इवापोरेट हो जाता है एंड द डाई जो प्रेजेंट होता है एज ए सॉलिड रेसिड्यू, इट विल बी स्टिक. वो जो आपने चाइना डिश लिया है उसके अंदर आपके जो डाई कंपोनेंट होते हैं वो स्टिकी रह जाते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर सेपरेट हो गया और जो आपका कलर्ड कंपोनेंट है वो आपके चाइना डिश में एज ए सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन होते हैं. सो दैट इज द पॉइंट. अब जैसे कि ये जो सेटअप है ये आपको समझ आ गया. अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आप बर्नर से हीट कर रहे हो, जो वाटर होता है वो गर्म हो रहा है एंड वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, स्टीम. तो जो स्टीम की जो हीट एनर्जी होगी, सो द स्टीम इज प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू द चाइना डिश एंड जैसे जैसे स्टीम की वजह से जो हीट एनर्जी जो है वो चाइना डिश एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली हीट नहीं दे रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ वो स्टीम जाके वो चाइना डिश पे अटैक करेगा और उधर से वाटर इवापोरेट होगा. सो दिस इज व्हाट व्हेन वी आर यूजिंग अ वाटर बाथ, जब हमें कोई भी चीज़ डायरेक्टली क्या नहीं करना होता, डिकम्पोज मतलब डायरेक्टली हीट नहीं करना होता, तब वी यूज़ वाटर बाथ. ऐसे बहुत सारे जो हायर क्लासेस पे जब आप साइंस लोगे तो वाटर बाथ भी लेते हैं, ऑयल बाथ भी लेते हैं, बहुत सारे अपैरेटस होते हैं. तो वाटर बाथ का इतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सो you have to draw this setup for explaining the separation of dye from water, that is a colored component का separation from ink. Then you have to note down these points how it is actually separated. Okay, so this is all about the first technique of separation, which is based on the process of evaporation. I hope it is very clear to you. We will end this video on the first technique of separation. In this video we will be taking next videos जिसके अंदर हम लोग दूसरे जो टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फॉर दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. मेक प्रॉपर नोट्स, नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज अगर आपको ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना आना चाहिए. क्लियर? थैंक यू सो मच.